Welcome friends. Today's online session for the subject Advanced Java Programming. So in this uh, session today we see about that what are the basics of the AWT hierarchy. So today we start the session. Okay. In a previous lecture we just cover about that what are the Windows fundamental and its method. So Windows fundamental, in this we cover component, container, frame, panel. But if you become the more familiar with this, then and then only you are to be able for this AWT programming. So I think you become a more familiar with this. But today I again repeat the previous session of some points that are related for you. So we start the session. So all of you knowing that the AWT is the stands for the Abstract Window Toolkit. So it is the platform in this you are doing the graphics programming. Graphics programming means the graphic user interface programming for the Java program. And already you know that the AWT is the large collections of the number of the classes, method and interface that is support for the graphics or GUI purpose programmings or applications. So this AWT is divided into the major three categories. So AWT is the huge collections of the classes. So it is a very impossible to divide the categories, but as my point of view or our syllabus point of view, we just divide into a three parts. The first one is the component, second one is the layout, and third one is the graphics. So component is the basic component, just like the button, text field, text area, label. These are the layout manager. In this layout manager for your syllabus, total 5 layout manager. One is the flow layout, grid layout, border layout, card layout. These are the basic one. And then graphics class is all of you knowing that graphics class in this paint method, just like the graphics programming method, font method, color method, many methods are related with this the graphics programmings that are available in this graphics class. So graphics class is very important for you for programming point of view. So I think you become the familiar with this graphics class, then you are able to create the program by using this component. So just we again revise the session, that is AWT classes. So AWT क्लासेस में मेन जो पैकेजेस है उसमें हमारे तीन मेन पैकेज है. द फर्स्ट पैकेज java.lang, java.awt एंड java.applet. सो जो मेन ऑब्जेक्ट है सबसे हमारा, हम जो भी कुछ करते हैं या हमारा स्क्रीन के ऊपर हम जो भी कंपोनेंट पेस्ट करते हैं, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ दैट द ऑब्जेक्ट. So we directly create the object. For this
we directly interface or directly we inherit all the methods that is available in the java.language package. सो ऑब्जेक्ट क्लास के बारे में हम थोड़ा सा आगे देखेंगे जब हम ऑब्जेक्ट क्लास प्रोग्रामिंग में यूज करने वाले हैं. एट दैट टाइम those methods available of this object class that we use next sessions. So for theory point of view, java.awt component and container, these are the basic classes. So उसमें सबसे मेन कौन है? कंपोनेंट. क्योंकि मैक्सिमम मेथड्स, मोर methods that is available in the component class. So कंटेनर क्लास में मेथड्स बहुत कम है, विंडो में उससे कम है, फ्रेम में उससे कम है, और डायलॉग में तो उससे ही कम है. पर मैक्सिमम जो मेथड्स है वो सब कहाँ पे है? कंपोनेंट क्लास में है. सभी मेथड अवेलेबल कहाँ पे है? कंपोनेंट क्लास पे है. तो जब भी आप बटन क्लास, लेबर क्लास, चेक बॉक्स क्लास, चॉइस क्लास, ये जो सब क्लासेस यूज करेंगे तब ऑटोमेटिकली those methods are available in this a component class that can be inherited by the concept of the inheritance. So if you just use the extend word at that time, means if you import, simple one is import java.awt.star, means what? Those classes is related with this a component class that can be used to everywhere. So component class जो है उसके मेथड्स खूब बहुत ज़्यादा है. वहाँ पे उसके मेथड्स अगर आपको पढ़ने हैं तो कम से कम उसको नॉन स्टॉप अगर 1 hour is required for this. So we take one another session of this component class. So you become the familiar with this. All the methods are available in this component class. So and then last one is the java.applet. Already you studied this java.applet. So in this session I cover those methods are very important for your programming point of view. So that method I will be cover. So first one. So सो कंपोनेंट क्लास क्या है? कंपोनेंट क्लास ये जो है सबसे टॉप क्लास है. टॉप क्लास बोले तो सबसे ऊपर या टॉप ऑफ द AWT hierarchy. सो जो भी all the it is the class that encapsulate all the attributes of the visual components. In short way, all the components, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है? बटन, टेक्स्ट फील्ड, स्क्रॉल बार, all the components is available to here. And suppose you make a formatting or we just we say that visualization of our the component is become the more easier for the user point of view. Then you become a make the as per their suppose size, color, then position, or if you want to be this component visible or not, or background color, background text color, or many operations, many methods is available with this. So I just take the few methods, that is
यूजफुल फॉर यू, फॉर प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे जो है सबसे ऊपर हमने लिखा है कि जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट, जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट कंपोनेंट। तो इसका जो सुपर क्लास है जावा डॉट ए डब्ल्यू टी डॉट कंपोनेंट का हम यूज करने वाले हैं उसका जो है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे अवेलेबल है, जावा डॉट लैंग्वेज डॉट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे पहली मेथड जो है सबसे इम्पोर्टेंट मेथड हमारे दो ही है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ये जो फर्स्ट मेथड ऐड एंड सेकंड मेथड रिमूव, ये हमको सबसे ज़्यादा यूज करना। अब यहाँ पे पहला जो मेथड कौन सा है, ऐड मेथड। व्हाट इज दिस ऐड मेथड मीन्स व्हाट, इफ यू वांट अ इंसर्ट अ कंपोनेंट ऑन द कंपोनेंट, म्हणजे हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये जो यू वांट ऐड द कंपोनेंट इनटू अ नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप का कौन सा है आपका, कंटेनर। सो यू डायरेक्टली ऐड द कंपोनेंट ऑन द पर्टिकुलर स्क्रीन बाय यूजिंग द कंटेनर। सो ऐड मेथड का सिंटेक्स क्या है, ऐड कंपोनेंट मीन्स ये जो है आगे के प्रोसेस के लिए कंपोनेंट तुम्हारा ऐड हो जाता है। आगे प्रोसेस कौन है आपका इन द, अभी कैसा है, अगर कंपोनेंट आपको यूज करने का है तो आप आगे वहाँ वो जो कंपोनेंट है नेक्स्ट स्टेप कहाँ पे है उसका, कंटेनर। देन उसका नेक्स्ट स्टेप कौन, वो डिवाइड होता है, वो विंडो में होता है और दूसरा हमारा एप्लेट में होता है। अगर हम एप्लेट यूज करते हैं तो वो जो एप्लेट पे पेस्ट होता है और एप्लेट के थ्रू हमारे स्क्रीन को हमको दिखता है। वैसे ही विंडो का, विंडो में वो ऐड होता है और विंडो थ्रू हमारे को हमें स्क्रीन पे दिखता है। तो ये जो है ऐड मेथड इज अवेलेबल इन द all the classes just like the window, applet, then frame, then panel, everywhere this add method is used the all the components that is related with this AWT programming. The second one is the remove, रिमूव कंपोनेंट। रिमूव कंपोनेंट, आपको अगर कंपोनेंट को रिमूव करना है तो एट दिस साइड यू कैन बी सिंपली यूज द रिमूव कंपोनेंट सी। बोल दो आपका जो भी कंपोनेंट है उसका हम तुमको नाम देना पड़ेगा और वो जो कंपोनेंट है वहाँ पे वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद में मेथड है सेट लेआउट। सेट लेआउट मेथड ये जो है यहाँ पे अगर आपको लेआउट सेट करने का है आपके स्क्रीन की और कंटेनर, तो आप लेआउट मैनेजर यूज कर सकते हो। और मैंने आप पहले ही बोला है कि देर आर द मेनी लेआउट मैनेजर जस्ट लाइक द ग्रिड लेआउट, फ्लो लेआउट, कार्ड लेआउट एक्सेट्रा। सो उसके बाद में जो मेथड है वो जो है सेट विजिबल। सो आपको अगर आपका कंपोनेंट यू वांट टू बी अ विजिबल मोड और नॉट विजिबल मोड, आपको अगर लगता है कि वो कंपोनेंट सबको दिखना चाहिए या नहीं दिखना चाहिए तो उसके लिए आपको सेटिंग करना पड़ेगा। सेट विजिबल इज द ट्रू, देन व्हाट, दिस कंपोनेंट इज अवेलेबल फॉर ऑल। इफ you don't set it is the by default it is the false, means it can be a visible for us true or false, ये आपको सेटिंग उसका है because it is the boolean data type। then set size, सेट साइज, अभी इसके बारे में थोड़ा सा हमको अलग से सेशन लेना पड़ेगा क्योंकि ये जो है गेट अलाइनमेंट या साइज स्टैंडर्ड, आप बोलो कि सेट साइज आपको अगर एज पर योर द स्क्रीन यू कैन बी क्रिएट योर कंपोनेंट width and height in the form of this pixel, so you can be set height, set size, width comma height, and then set bound। set bound means what, moves and resize this component। आपको आपके अकॉर्डिंग थ्रू आपका जो कंपोनेंट है वो स्क्रीन पे कहाँ पे मूव करने का है
या कहाँ पे पेस्ट करने का है, तो उसके लिए आप एग्जैक्ट पोजीशन उसको दे सकते हैं। तो जस्ट आई रिवाइज दिस सिंपल, वेरी इंपॉर्टेंट वन, ऐड मेथड, ये हमको सभी तरफ यूज करना है। उसके बाद में अगर आपको कंपोनेंट रिमूव करना है तो आपके लिए मेथड अवेलेबल है, रिमूव कंपोनेंट के लिए रिमूव मेथड। देन सेट लेआउट मेथड, आपका अगर लेआउट सेट करना है तो उसके लिए हमारे पास मेथड है सेट लेआउट, लेआउट मैनेजर यम, सेट लेआउट, लेआउट मैनेजर यम। उसके बाद में सेट विजिबल, आपको अगर आपका कंपोनेंट विजिबल करना है तो उसके लिए आप सेट विजिबल इज द ट्रू, और बाय डिफॉल्ट इट इज द फॉल्स। सो देन सेट साइज, सेट साइज इज द, आपको अगर आपके कंपोनेंट का एग्जैक्ट साइज आपको आपके स्क्रीन के हिसाब से या आपके उसके इम्पोर्टेंस के हिसाब से तैयार करने का है तो उसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं सेट साइज। उसका जो सिंटैक्स है सेट साइज, विड्थ एंड हाइट। देन अगेन सेट बाउंड, सेट बाउंड बोले तो आपका जो कंपोनेंट है आपको जो एग्जैक्टली स्क्रीन एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट के हिसाब से वहाँ पे पेस्ट करने का है तो हम उसके लिए सेट बाउंड मेथड यूज करने वाले हैं। तो इसमें हमने बहुत सारे मेथड्स देखे हैं। तो जो भी और यहाँ पे मैंने और मेथड लिए उसका सिंटैक्स नहीं लिखा है, क्योंकि यहाँ पे गेट नेम, suppose you want the name of our the component, then use the get name method. Get parent, you want find out the parent of the component, then by using the, it is the available in the container class. Then get preferred size, if you want to be a show the exactly preferred size, so you get preferred size, this method is used. Then again get size, get size means what, you want to be written those component is available in your the form, and you want what is the size of this component, then you also use the get size method. Get width, get width means what, you can be written the current width of this component. Get height, get height means return the current height of the component। ये जो हमको आगे यूज करने का है, क्योंकि गेट यक्स ये जो है हमको गेट एक्स या गेट वाई, ये जो है हम जब इवेंट हैंडलिंग के माउस प्रोग्रामिंग करने वाले हैं, एट दिस टाइम वी यूज दिस गेट एक्स एंड गेट वाई। गेट एक्स इट इज द रिटर्न द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द component origin, get y it is return the current y coordinate of the component origin। repaint, repaint means what, if you want a refresh your the system या स्क्रीन या उसके ऊपर हमको कुछ नया पेस्ट करना है कुछ सम ऑपरेशन के बाद, तो रिपेंट मेथड भी हमको यहाँ पे बहुत यूजफुल होने वाले। तो जस्ट आई रिवाइज दिस, गेट नेम, get parent, get preferred size, get size, get width, get height, get x, get y, repaint and repaint this। तो आई थिंक ये सब मेथड्स आपको नोट इन वन नोटबुक। Why? These methods are important in throughout AWT and Swing program। तो ये जो मेथड्स है ये हमको आज सिर्फ थ्योरी पार्ट करके होने वाला नहीं है। In case you make the practical one, at that time this method is beneficial for you। So I think all of you write all the methods that is related with this component class। So I think all of you familiar with this। Then I turn to the next one, container class। अब हमने आप पहले कंटेनर क्लास के बारे में देखा है कि कंटेनर क्लास क्या है। कंटेनर क्लास इज द पार्ट ऑफ द 4 टाइप्स ऑफ द कंटेनर। फर्स्ट वन है विंडो, फ्रेम, डायलॉग एंड पैनल।
तो ये जो कंपोनेंट है, ये जो है इट इज़ द कंपोनेंट के बाद में कौन आता है, कंटेनर। तो कंटेनर को क्या करता है, कंटेनर इट कैन बी अ डिजाइन your the layout of our the all the components, or it can be also support to handle the event handling programming related with this the component. So उस इसका कंटेनर का काम क्या है, इसका जो मेन रोल क्या है, जो लेआउट मैनेजर को लेआउट मैनेजर सपोर्ट करता है, उसको हैंडल्स ऑल द events related with this the component. Also it is divided into the main 4 parts, means what, इसके आगे जो है हमारा प्रोग्रामिंग ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है। तो पहला पार्ट जो है विंडो आता है और दूसरा पार्ट जो है हमारा पैनल आता है। अगर पैनल के बारे में हम देखे जाएंगे, हम तो पैनल बोले तो एप्लेट रिलेटेड प्रोग्रामिंग आगे चालू होती है, और विंडो बोले तो इट इज़ द बाय यूजिंग द विदाउट मेन। विदाउट मेन मीन्स व्हाट, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन हम उसमें यूज़ नहीं करते, सिंपल जावा एप्लीकेशन होता है और यहाँ पे एप्लेट एप्लीकेशन चालू होता है। तो विंडो और पैनल इज़ द 2 अलग अलग प्रोग्रामिंग के पार्ट है। तो क्योंकि पैनल और विंडो ये साथ में चल नहीं सकते हैं, तो दोनों के प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट थोड़े से डिफरेंट है। तो हम पहले विंडो प्रोग्रामिंग देखेंगे और उसके बाद में हम एप्लेट प्रोग्रामिंग की तरफ टर्न हो जाएंगे, ठीक है। तो बेसिक ये जो उसका क्लास हियरार्ची है, जो क्लास हियरार्ची आपको दिखता है यहाँ पे कौन कौन सा है, जावा डॉट लैंग्वेज डॉट ऑब्जेक्ट, जावा डॉट AWT डॉट कंपोनेंट, जावा डॉट AWT डॉट कंटेनर। तो इसको आपको मेरे ख्याल से या आपने अच्छी तरह से ये जो मेथड्स इसमें इनहेरिटेड होते हैं, जैसे कि जावा डॉट लैंग डॉट ऑब्जेक्ट, जावा डॉट AWT डॉट कंपोनेंट, जावा डॉट AWT डॉट कंटेनर। तो यहाँ पे मैंने कंटेनर के लिए कोई भी मेथड यहाँ पे मैंने आपको बताया नहीं है, क्योंकि जस्ट आई रिवाइज दिस ऑल ऑफ यू दिस। ये जो है यहाँ पे मैंने बहुत सारे मेथड्स आपको पेस्ट करके देखे। अब आप इसमें आपको इतने सारे मेथड्स तो एक साथ आप स्टडी कर नहीं सकते। सो यहाँ पे जो मेथड्स है, कि पहला ये जो मेथड्स मैंने लिखा है, ये जो ऐड मेथड मैंने पहले ही आपको बोला है। उसके बाद में हमें यहाँ पे कॉमनली जो जो मेथड्स हम यूज़ करने वाले हैं, मैं सिर्फ उसके आपको नाम लूँगा, या तो आप उसके लिए फैमिलियर हो जाएगा। गेट बैकग्राउंड मीन्स व्हाट, यू जस्ट get the background of your the screen by using the method get background। उसके बारे में गेट फॉन्ट, हमने एक फॉन्ट तो क्लास ऑब्जेक्ट तैयार किया है, और कौन सा फॉन्ट का नेम है अगर आपको लेना है तो फॉन्ट क्लास भी कंटेनर को ओवरराइड होता है। तो जो मेथड हम फॉन्ट क्लास भी यूज़ करते हैं, गेट फोरग्राउंड ऑल्सो, get height also, get location also, get name, get parent। उसके बाद में get width, get x, get y। देन कॉमनली मेथड्स इसमें हम और देखने वाले हैं, जो अभी हमने देखे हैं। ये बाकी का जो बाकी मेथड दिख रहा है आपको, प्रोसेस इनपुट, ये जो है सब इवेंट हैंडलिंग का पार्ट है, वो हमारा चैप्टर नंबर 3 में है। तो वो मेथड्स हम अभी नहीं देखेंगे। हम कॉमन हमारे मेथड्स है, जैसे कि ऐड, उसके बाद में आता है रिमूव, और उसके बाद में आता है पेंट, उसके बाद में आता है रिपेंट, और उसके बाद में आता है रिसाइज, सेट बाउंड, सेट फॉन्ट या सेट साइज। these are the commonly set locations। these methods are the very very common one। so all these methods are support in this container। so I think all of you become the understand the methods
of this. So I think uh, द नेक्स्ट पार्ट इज़ द विंडो प्रोग्रामिंग। विंडो के मेथड जो है, विंडो हम हमारा विंडो क्लोज कर सकते हैं या उसको मिनिमाइज कर सकते हैं या मैक्सिमाइज कर सकते हैं। तो विंडो क्या है, यहाँ पे विंडो हैज़ नो बॉर्डर नो टाइटल, पर डायलॉग में क्या है, इट्स हैविंग द बॉर्डर एंड टाइटल। दैट इज द मेन बेसिक डिफरेंस वन। सो विंडोज़ रिलेटेड मेथड्स हम जब हम विंडोज़ प्रोग्रामिंग करेंगे इवेंट हैंडलिंग में, at that time we just use all the methods of the विंडो में क्या है, विंडो हमारा जो मिनिमाइज मैक्सिमाइज और क्लोज हम ज़्यादा यूज करते हैं। तो उसके रिलेटेड मेथड्स हम मेथड इवेंट हैंडलिंग में देखेंगे। डायलॉग का जब प्रोग्रामिंग करने वाले तब हम डायलॉग के मेथड्स देखेंगे। अब फ्रेम, फ्रेम क्या है, फ्रेम ये जो है इट इज़ द स्मॉल विंडो, और तो उसके रिलेटेड जो प्रोग्रामिंग है हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो फ्रेम इज़ द सब क्लास ऑफ द विंडो। पर फ्रेम में क्या है कि फ्रेम आपके जो भी है बटन्स, लेबल्स, टेक्स्ट फील्ड्स आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो। और फ्रेम हैज़ द टाइटल, बॉर्डर और मेनू बार्स। तो मेन क्या है, फ्रेम में टाइटल है, बॉर्डर है और मेनू बार्स है, बट एप्लेट में ये सब नहीं है, इतना ही फ़र्क है। तो एप्लेट में क्या है, टाइटल नहीं है। आप उसको एप्लेट विंडो का टाइटल दे सकते हैं, पर मेनू बार वगैरह हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते हैं। तो the frame has the border and menu bars and title, so it is the difference one। तो ये जो है, अब हम जैसे हमने अभी मेथड्स देखे हैं सब, ऐड मेथड, सेट लेआउट मेथड, रिमूव मेथड, set size methods, these all the methods is available in the component class, and you can be override all the methods in the also frame class. So maximum we use the add method, set layout method, remove method, and set size method is also used in our the programming. So panel class is the subclass of the container। panel class में टाइटल बार नहीं है, मेनू बार नहीं है और बॉर्डर नहीं है। मैंने पहले ही बोला है कि आपको फ्रेम में ये सब है, पैनल में ये नहीं है, तो इतना ही फर्क है। तो जनरली पैनल इज द यूज फॉर द एप्लेट वन। एप्लेट पर्पज़ के लिए हम पैनल यूज़ करते हैं। जब हम एप्लेट प्रोग्रामिंग देखेंगे तब पैनल के बारे में हम डिटेल्स स्टडी करेंगे। तो एप्लेट आपको मालूम है, एप्लेट में के जो है मेन 4 मेथड्स है, INIT, स्टार्ट, स्टॉप एंड डिस्ट्रॉय। हमने INIT के बारे में, INIT एंड ये जो है हमारा स्टार्ट मेथड ही इम्पोर्टेंट है। बाकी स्टॉप मेथड और डिस्ट्रॉय मेथड इट्स ओनली वंस, डिस्ट्रॉय इज द ओनली वंस। स्टॉप मेथड्स, you want to stop the applet means it is the minimize mode। INIT start method is the maximize mode। सो एंड हमको यहाँ पे इम्पोर्टेंट कौन सा है, INIT मेथड ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्टार्ट एप्लेट इनिशियलाइजेशन इज बाय यूजिंग द INIT मेथड। एंड देन इसमें हम और एक मेथड यूज़ करने वाले जो कि पेंट मेथड, और वो जो है वो ग्राफिक्स क्लास के रिलेटेड है। और वो जो ग्राफिक्स क्लास अवेलेबल कहाँ पे है, java.awt.component क्लास, जो कि कंपोनेंट क्लास हमने अभी देखा है। तो ऑल द मेथड, सपोज आपको फॉन्ट सेट करना है, कलर सेट करना है, तो उसके लिए हमको ग्राफिक्स क्लास का ऑब्जेक्ट पहले तैयार करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा, तो ही उसके बाद में हम वो कंपोनेंट के ऊपर फॉर्मेटिंग या उसको जो अट्रैक्टिव पर्पस के लिए अट्रैक्टिव कर सकते हैं, या यूज़र पॉइंट ऑफ व्यू उसको हम कर सकते हैं। तो आई थिंक टुडे वी कवर ऑल द मेथड्स that is related with this the component class, container class, frame class, panel class, and applet class. So I think today we end this session, and in next session we start the frame programming, and I take frame programming के बारे में थोड़ा बेसिक पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद में we create one component
एंड देन ऐड द कंपोनेंट। तो उसके पहले